Hello students. In the previous class, we discussed about the various asanas through which we can improve our concentration like Sukhasana, Tadasana, Padmasana. Okay. So today we are going to see another three asanas through which we can enhance our concentration level. Okay. So first we will start from Sasangasana. Okay. So by seeing this picture, you can understand how you should perform Sasangasana. तो यहाँ पर प्रोसीड्योर दिखाया गया है, देखते हैं. To sit in Vajrasana, place hands on the thighs, keep the upper body straight and relax while inhaling. Okay, raise both the arms above the head, keep them straight and shoulder wide apart. Exhale while bending the trunk forward from the hips, keeping the arms and head straight and in line with the trunk. Then heads and forehead should rest on the floor in front of the knees. Bend the arms slightly so that they are fully relaxed and let the elbows rest on the floor. Okay. So retain breath for up to 5 seconds in the final position. At the same time, inhale and slowly raise the arms and trunk to the vertical position. Exhale while lowering the arms to the knees. Practice this 3 to 5 times. Those who want to calm anger may increase the duration of the final position from 3 to 10 minutes. ओके तो प्रोसीड्योर ये है शशांकासना के लिए. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को. तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि कैसे शशांकासना परफॉर्म करना है. ठीक है. तो नेक्स्ट विल सी. तो यहाँ पर इस स्लाइड में तुम लोग देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कैसे शशांकासना परफॉर्म करना है. ठीक है. तो by seeing this picture you can perform very well Sasangasana. तो benefits क्या क्या है देखते हैं. It helps to relieve fatigue and promote concentration of mind. Okay, it helps in relieving anxiety and depression due to its calming effect. It improves blood supply to the head and therefore nourishes eyes and all the brain functions. Next, it releases the pressure on the disc. It regulates the functioning of adrenal glands. Next, regular practice relieves constipation. Okay, and then the spine gets a forward stretch and becomes flexible and strong. Okay, it stimulates the functioning of pituitary, pineal, thyroid and parathyroid glands, and then it reduces the excess fat in the abdominal region. It also controls diabetes and it increases the memory power. So these are the benefits for Sasangasana. तो बाय डूइंग शशांकासना हम लोग ये जो यहाँ पर बेनिफिट्स दिखाया गया है तो वो हम लोग लाभ कर सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स दिखाया गया है जैसे कि जो ग्लैंड्स को कंट्रोल हम लोग रख सकते हैं बाय डूइंग शशांकासना एंड मेमोरी पावर इंक्रीज कर सकते हैं. कंट्रोल डायबिटीज़ ऑल्सो वी कैन कंट्रोल. तो ये जो चीज़ है तो ये सब आजकल हम लोग के लाइफ में मतलब लाइफ के साथ जुड़ा होते हैं ये प्रॉब्लम्स. तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय डूइंग शशांकासना. तो यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिखाया गया है. तो दोज इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और स्लिप डिजीज शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना. ठीक है. जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है और स्लिप डिजीज का प्रॉब्लम है वो लोग ये आसनास अवॉइड करना चाहिए. तो नेक्स्ट विल सी
नौकासना। नौकासना कैसे परफॉर्म करना है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाई डाउन फ्लैट ऑन द मैट with your feet together and your arms on sideways. After that, keep your arms straight. Then start inhaling, and as you exhale, lift your chest and feet off the ground, stretching your arms towards your feet. Okay? Feel the tension in your stomach area as the abdominal muscles contract. Keep breathing deeply and easily while maintaining deep pose. Hold this position for few seconds. Now exhale and come back to the ground slowly and relax. You can perform it 3 to 4 times daily. तो प्रोसीड्यूर क्या है, तुम लोगों को ग्राउंड में फ्लैट पोजीशन में लाई डाउन होना है, और जब इनहेल होंगे तो उस टाइम हाथों को एंड दोनों पैरों को उठाना है साइमल्टेनियसली, और उस पोजीशन में थोड़ा देर रुकना है। जब एब्डोमिनल में या स्टमक में वो टेंशन तुम लोग फील करोगे, एंड उस पोजीशन में तुम लोगों को थोड़ा देर वेट करना है, फ्यू सेकंड्स तक होल्ड करना है, एंड नेक्स्ट प्रीवियस जो पोजीशन था उसमें लौट जाना है, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कैसे परफॉर्म करना है। प्रीवियस पोजीशन तुम लोग प्रोसीड्यूर देख के समझ में आ जाएगा, और ये इनिशियल पोजीशन है। तो बेनिफिट्स क्या है, इट टोन्स द मसल्स ऑफ द लेग, ओके। इट इज़ यूजफुल फॉर द पर्सन्स विथ हर्निया, and next it strengthens the back and abdominal muscles, okay। back and abdominal muscles को strengthen provide करते हैं। it helps in digestive process, and then it helps in reducing belly fat, okay। तो by doing this asana, नौकासना, हम लोग ये बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिखाया गया है। इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, migraine, spinal disorder and severe headache, don't perform this asana, okay। किसी का ब्लड प्रेशर लो होगा तो, या माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो, या स्पाइनल डिसऑर्डर या सेवर हेडेक, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब होगा तो ये आसनस नहीं करना चाहिए। अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसना इफ़ यू हैव अस्थमा और हार्ट डिजीजेस, ठीक है। जिन लोगों का अस्थमा प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीजेस है, ये आसनस अवॉइड करना चाहिए। वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में ये आसनस अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो हम लोगों को क्या करना है, जब कोई आसनस परफॉर्म करने जाते हैं तो पहले हम लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेना चाहिए, ठीक है। तो बेनिफिट्स देखने से पहले हम लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेना चाहिए। तो किसी का ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, स्पाइनल डिसऑर्डर, सेवर हेडेक, ओके, तो ये सब प्रॉब्लम किसी का भी हो सकता है। तो वो लोग ये आसनस करने से उनका वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेना है, उसके बाद परफॉर्म करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृक्षासना। तो वृक्षासना कैसे परफॉर्म करना है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पर जो स्लाइड है। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है। द नेम वृक्षासना हैज़ बीन टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड वृक्षा मीनिंग ट्री, ठीक है। ब्रिक्स मतलब आसामी से एक वर्ड है वृक्षा, ठीक है। ब्रिक्स मीन्स ट्री एंड आसना मीन्स पोस्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसीड्यूर है वो देखते हैं। स्टैंड इरेक्ट विथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, बेंड योर राइट नी एंड प्लेस द राइट फुट ऑन योर लेफ्ट थाई। द सोल ऑफ द फुट should be kept flat near the foot of the thigh.
your left leg should be straight, the right leg should be perpendicular to the left leg. Then extend your arms above your head. Inhale and try to make Namaskar Mudra with your palms. Maintain proper balance. Try to make your spine straight with deep exhale. During your arms, bring your arms and leg down. Repeat the same with left leg. It completes one round. Perform 3 to 5 rounds of this asana. However, after some time, the number of rounds may be increase. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, तो कोई भी लेग हम लोग ले सकते हैं. तो हम लोग का जो पकड़ लो लेफ्ट लेग पहले बेंड होगा, तो लेफ्ट लेग को कहाँ प्लेस करना है, जो राइट थाई है राइट साइड के इनर साइड में हम लोग को अच्छे से प्लेस करना है और दोनों हाथों को ऊपर लेके नमस्कार मुद्रा में रहना है और स्पाइन को स्ट्रेट रखने को कोशिश करना है. ठीक है, उस पोजीशन में बैलेंस बना कर रखना है और थोड़ा देर वहाँ उस पोजीशन में रहना है. ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिट्स दिखाया गया है, क्या क्या है देखते हैं. इट स्ट्रेंथेन्स द लिगामेंट्स एंड टेंडन ऑफ द फीट. जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स है जो लेग मसल का, तो उसको मतलब स्ट्रेंथ बनाते हैं. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन. दिस आसना हेल्प्स इन रिलीविंग पेन ड्यू टू sciatica, and then it helps the body in establishing pelvic stability. Okay, it improves balance and stability in the legs. It is helpful to those who are facing the problem of depression and anxiety. ठीक है, it enhances the flexibility of legs, back and chest muscles. It also reduces the knee problems. तो these are the benefits जो कि हम लोग वृक्षासन परफॉर्म करके अर्न कर सकते हैं या लाभ कर सकते हैं. जैसे जो लेग मसल्स है वो लिगामेंट्स या टेंडन्स जो पैर में होते हैं उसको स्ट्रेंथन बना कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज हम लोग का जो होल बॉडी है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, होल मसल को. ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, इंसोम्निया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, acute knee injuries and hip injury, you should avoid practicing this asana. ठीक है, जिन लोगों का माइग्रेन का प्रॉब्लम है एंड लो और हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को ये आसनास अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, और किसी का हिप इंजरी भी हो सकता है या क्रॉनिक इंजरीज जिन लोगों का है लेग मसल में, उन लोगों को ये आसनास नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये था जो कि आसनस हम लोगों ने डिस्कस किया, शशांकासना, नौकासना एंड वृक्षासना, थ्रू व्हिच वी कैन इम्प्रूव आवर concentration level, right? So next class में we'll see relaxation techniques for improving concentration. Okay, thank you.